One job opportunity that is available for fresh law graduates is here. I want to discuss that with you ताकि अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो then you must apply here if you're interested especially in taxation or corporate law, that this job is for you. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law based examinations and welcome to Law Digest. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है, they have called for persons to engage as young professionals. So basically they've clearly specified that these are young professionals who will be called, who are law graduates basically, then they'll be called on contractual basis, यानी एक time period specified होगा आपके contract के लिए. They've also in the terms mentioned कि उस contract को further enhance extend भी किया जा सकता है, वो अभी हम आगे देखते हैं. Now this is in Directorate of Income Tax, Legal and Research. So in case you are interested, you can apply here. This is extendable by 1 or more years subject to the conditions mentioned in Annexure 1. अब यहाँ पर जो age limit है, something that's very important for us to understand is कि 1 year तक ये contract extendable है, that we know. एज लिमिट में ये है कि आप 30 इयर्स के होने चाहिए हो एज ऑन द डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट. सो इफ यू विल सी द एडवर्टीजमेंट इज डेटेड 26 अक्टूबर, दैट इज द डेट जब आप मैक्सिमम 30 इयर्स के होने चाहिए हो. वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन आईपी स्टेट न्यू दिल्ली. एंड आपका something very important which people feel is the stipend 40,000 per month, which is a good enough a handsome opportunity that you are getting. ये आपको अमाउंट हर मंथ दिया जाएगा इन दिस जॉब. देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देव सेड लॉ ग्रेजुएट, एंड जो डिटेल्स हैं अभी हम आगे एनेक्शन में देखेंगे जहां पर हमें ये वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा. जॉब डिस्क्रिप्शन भी एनेक्शन में मेंशन्ड है. इसमें बेसिकली इट रिलेट्स टू मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ लीगल डेटाबेस. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक लीगल डेटाबेस होता है जिसके लिए दे नीड लीगल ऑफिसर्स like you and me to perform the job for them, and that is the job that you will be given here. Selection process भी आगे जो details हैं, terms and conditions, they have been discussed. The main thing that we have to understand from this page is 17th November is the last date जब आपको अपनी applications भर के send करनी है. They've given the address here, so you have to send it through either email or post. email के लिए ये address यहाँ पर दिया हुआ है that you can check. आप यहाँ पर भेज सकते हो या फिर इस ऑफिस पे भेज सकते हो. नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन लुक लाइक? फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है लास्ट पेज पे, वो एप्लीकेशन भर के आपको भेजनी है. बेसिक डिटेल्स हैं, जस्ट दैट एक एडिशनल पैराग्राफ है wherein you have to write that why are you suitable for this job. उसमें बेसिकली यू नो because this is a tax department, so you can talk about your interest regarding the tax subject. Then अब यहाँ पर अगर हम कंडीशंस देखते हैं, वैकेंसीज जो हैं इस जॉब के लिए, दे आर 8 इन नंबर. नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? इंडियन नेशनल होने चाहिए हो आप. फर्दर आपकी LLB की डिग्री होनी चाहिए. प्रेफरेंस उन लॉ ग्रेजुएट्स को दी जाएगी हु आर फ्रॉम रिप्यूटेड कॉलेजेस. सो अगर आप NLS, दिल्ली यूनिवर्सिटी, GLC ऐसी organizations, ऐसी यूनिवर्सिटीज से हो, then you will be preferred over the others. Then they've said कि आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, good working knowledge of English language including drafting skills. I've been time and again emphasizing on drafting, that it is very important for us as lawyers to know how to draft. And agar aap law graduate ho, you are new to this, and if you don't have any experience at drafting, I would say कि you can check our course on drafting of legal notice, जो हमने बहुत thoughtfully उसको organize किया है, and it's available on our website www.lawdigest.in. drafting एक skill है, and वो books पढ़ने से नहीं आएगी, उसको practice करके ही जो लोग experienced हैं उनके experience को combine कीजिएगा practice से, and then only you will be able to learn drafting. देन दे ऑल्सो सेड कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए. MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, बिकॉज वेन एवर यू विल बी गोइंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये बेसिक MS ऑफिस आपको आना चाहिए, बिकॉज यू विल बी टाइम एंड अगेन यूजिंग दिस. फॉर द एज लिमिट ऊपर हमने देखा था 30 इयर्स की है. स्कोप ऑफ वर्क में बेसिकली क्या है कि आपको डेटाबेस मेंटेन अपडेट करना है, रिसर्च करनी हो सकती है किसी मैटर पे, या फिर कोई भी मैटर जो डायरेक्टोरेट आपको असाइन कर दे. स्टाइपेंड हम देख चुके हैं 40K पर मंथ इज टू बी पेड.
Period of engagement is 1 year. Now this can be further extended by another 1 year. That is subject to the performance of the candidate. स्क्रीनिंग जो है, नाउ व्हाट विल हैपन इज, इसमें कोई आपका एग्जामिनेशन वगैरह नहीं है, रिटन एग्जाम नहीं है, ये जो आपकी एप्लीकेशन जाएगी उसकी स्क्रीनिंग होगी बाय द डायरेक्टोरेट एंड देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. सो दीज आर the only two conditions that are there. और ये इंटरव्यू की जो नेम्स है, शॉर्टलिस्ट है, ये पोस्ट कर दी जाएगी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, इनकम टैक्स india.gov.in पे आपका ये रिजल्ट दिखेगा. Now these are some general terms and conditions that you can read. Regular आपका Monday to Friday आपके working hours रहेंगे, Saturday Sunday gazetted holidays. Then आपको लीव जो है वो 1.5 days के हिसाब से आपको यहाँ पर लीव मिलेगी. These are basic IPR terms कि आप जो भी डिलीवर कर रहे हो, कंटेंट जो प्रोड्यूस कर रहे हो वहाँ पे, दैट इज देयर प्रोप्राइटरी. जब आप ड्राफ्टिंग भी सीखोगे तब आपको भी समझ में आएगा. ये बहुत बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में डालने की, जो ऑर्गेनाइजेशंस को डालनी पड़ती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. सो यू कैन रीड दीज. फॉर द टर्मिनेशन की यहाँ पर बात करी हुई है कि कब आपकी एंगेजमेंट जो है वो टर्मिनेट करी जा सकती है. ऑब्वियसली इट विल बी ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स कि आप काम नहीं कर पा रहे हो या आपके बिहेवियरल इश्यूज हैं. थिंग्स लाइक दोज विल फॉर्म द टर्मिनेटिंग कंडीशंस. Conduct is important. They've given a disclaimer that you cannot claim any benefit or rules जो regular government employees को मिलता है, because this is a contractual job. 17 नवंबर आपको डेट याद रखनी है, और अगर आप दिल्ली जुडिशरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 22 नवंबर की डेट आपको याद रखनी है. अब ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर दी हुई है. यू कैन सी इट्स वेरी बेसिक. आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर बीइंग आस्क्ड. तो हियर यू विल सी इट रियली मैटर्स कि आप कौन से कॉलेज और इंस्टीट्यूशन से हो. दीज थिंग्स विल डेफिनेटली मैटर बिकॉज उसी के बेसिस पे ये एप्लीकेशन स्क्रीन होंगी. एंड अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वेल एंड गुड. ऑल्दो प्लीज नोट कि यहाँ पर ये फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है, जरूरी नहीं है कि आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो. देव क्लियरली सेड इफ एनी, सो दैट इज नॉट कंपल्सरी. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको जो लैंग्वेजेस आती हैं, सॉफ्टवेयर का भी यहाँ पर पूछा गया है. एंड देन यू हैव टू गिव अबाउट योर सुटेबिलिटी फॉर दिस एंगेजमेंट फॉर 200 वर्ड्स. एंड देव क्लियरली मेंशन्ड कि अगर जरूरत पड़े तो आप सेपरेट शीट भी यूज कर सकते हो. सो दिस एप्लीकेशन यू विल प्रिंट, एंड इसके पीछे अगर आपको अपना और आंसर लिखना है तो आप एक सेपरेट शीट उसको स्टेपल करके भेज सकते हो. एंड मेक श्योर दैट यू साइन दिस डिक्लेरेशन दैट इज गिवन हियर. सो इसी के साथ ये आपका एप्लीकेशन जो है, पूरा एडवर्टीजमेंट हमने डिस्कस कर लिया है. अगर कोई आपको फिर भी क्वेरी या डाउट रहता है उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए. एक बहुत ही अच्छा जॉब है. जब हम लॉ ग्रेजुएट होते हैं, वी डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इन हैंड, बड़ी मुश्किल से ऐसी जॉब्स मिलती हैं जो हमको रेप्यूटेड भी लगे और वेल पेइंग भी हो. Now this is one of them. So I just really wanted to share this with you guys. In case you're interested, you can apply. 17 नवंबर आपकी डेट है. फर्दर ऐसी और वीडियोस के लिए, टू स्टे अपडेटेड with legal industry, with legal knowledge, legal current affairs, make sure that you are following us on YouTube as well as you're following us on Instagram.